Hello everyone, welcome to our channel. I am Rekha Kula. Today we are going to start with a new chapter. The name of the chapter is A Pact with the Sun. और 6th क्लास का चैप्टर है, पैक्ट विद द सन का ही चैप्टर है ये. पैक्ट विद द सन जो बुक है उसका चैप्टर है 8th चैप्टर. ठीक है. पैक्ट में समझौता होता है. यहाँ पे देखिए इस किरणों ने क्या समझौता किया था, सूर्य की किरणों ने. इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे कि सईदा की मदर जो है वो बीमार होती है और सईदा किस तरह से प्रार्थना करती है किरणों से, सूर्य की किरणों से. ठीक है, इसको हम डिटेल पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. Saida's mother had been ailing for a long time, fever, cough, body ache, painful joints and whatnot. Treated by a variety of physicians for weeks, she often showed sign of improvement but soon relapsed into her old sick self, one complaint substituted by another. Though weak and colorless, she was forbidden normal food and was under strict order to remain perpetually confined to her small, dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air. सईदा की मदर काफ़ी लंबे समय से ज्वर, खांसी, शरीर के दर्द, जोड़ों के दर्द तथा अन्य कई रोगों से पीड़ित थी. कई सप्ताह तक विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा इलाज किए जाने पर सुधार के लक्षण झलकते, परंतु कुछ समय के बाद फिर से वैसे ही हो जाती और बीमार जाती. कई बार एक शिकायत की जगह पर दूसरी परेशानी हो जाती. वह कमज़ोर और रंगहीन हो गई थी. ठीक है, उसे सामान्य भोजन का परहेज बता दिया गया था. उसे कठोर आदेश दिया गया था कि निरंतर अपने छोटे और अंधेरे कमरे के भीतर दरवाजे और खिड़की बंद करके धूप और ताज़ी हवा से बची रहे. आगे देखिए इसमें. When she became critical, her relatives and neighbors persuaded her to consult a specialist even though his fee was likely to be high. Life is more precious than money, they said. Saida's mother was poor, but she heeded their advice and sold a few trinkets to pay the doctor's fee and the cost of medicines. यानी कि उसकी हालत जो है नाजुक हो गई. उसके संबंधी और जो पड़ोसी थे उसके ऊपर दबाव दिया उन्होंने कि किसी अच्छे डॉक्टर से परामर्श करके, बेशक चाहे उसकी फ़ीस ज़्यादा हो. ठीक है, उन्होंने कहा कि जीवन धनराशि से ज़्यादा मूल्यवान होता है. सईदा की मदर जो है वो बहुत ही गरीब थी, परंतु उसने उनके उपदेश पर गौर किया, ध्यान दिया और डॉक्टर की फीस देने और दवाइयों की कीमत चुकाने के लिए उसने अपने कीमती गहने बेच दिए. The doctor came in a few days and examined her and prescribed effective but costly medicines. To the questions as to what she should eat, he said, "Anything you wish to eat, chapati, vegetable, milk, fruits, etc. In addition to all this," he added emphatically, "leave this dark hovel and occupy a bigger room with doors and windows open. Sit in the sun every morning from 8 to 9. Sunshine and fresh air," he concluded, "are more important than medicines." यहाँ पे क्या बताया है कि कुछ दिनों में डॉक्टर आया, उसका निरीक्षण करके प्रभावशाली दवाइयाँ निर्धारित कर गया. जबकि उससे ये प्रश्न किया गया कि रोगी को क्या खिलाया जाए, तो उसने कहा कि जो कुछ रोगी खाना चाहे, चाहे रोटी हो, सब्जी हो, दूध हो, फल हो आदि. उसने जोर देकर कहा कि इन सब के अतिरिक्त इस अंधेरी कोठरी में जिसमें वो रह रही है अंधेरे में, ठीक है, उसको छोड़कर किसी बड़े कमरे में जिसमें दरवाजे खिड़कियाँ हो वो खोलो, उनको खोल करके रहो. ठीक है, और प्रतिदिन प्रातः 8 से 9 बजे तक धूप में बैठो कि धूप और ताज़ा हवा क्या होगी, दवाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है. ठीक है, आगे देखिए. The doctor and his advice become a subject of noisy commentary among all present. Some favored while others opposed it. Exposure to sun and air for someone afflicted with chronic cough was dangerous. An experienced lady declared. A younger neighbor nearly quarreled with her over this, too exhausted to participate in the debates. Saida's mother remained quiet but determined to follow the doctor's advice. "Forget the consequences," she said at last. "I will carry out his instructions to the letter. Move my bed into the next room and let me sit in the sun of my charpai for an hour daily." सभी वहाँ पर जो उपस्थित लोग थे उनके बीच में डॉक्टर और उसकी जो नसीहत थी उस पर टीका टिप्पणी होने लगी. कुछ ने तो कहा, कुछ ने तो उनका पक्ष लिया और कुछ ने विरोध भी किया. ठीक है, वहाँ पर एक अनुभवी जो महिला थी उसने कहा कि जो पुरानी खांसी से जो पीड़ित व्यक्ति के लिए धूप सेकना खतरनाक सिद्ध हो सकता है. इस बात पर वहाँ पर एक नवयुवक था, उसने उस पड़ोसिन के साथ में वाद विवाद किया और अधिक थकी होने के कारण वाद विवाद में भाग लेने में असमर्थ होने के कारण सईदा की जो मदर है वो शांत रही, परंतु उसने डॉक्टर की सलाह को मानने की मन में ठान ली.
अंत में उसने कहा कि परिणामों को भूलकर मैं डॉक्टर की सलाह का पालन करूंगी। मेरी जो चारपाई है वो अगले कमरे में डाल दो और मुझे प्रतिदिन 1 घंटा धूप में चारपाई डाल करके उसके ऊपर बैठने दो। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब सईदा की मदर जो है उसने ठान लिया है कि मुझे तो ठीक होना है, क्योंकि डॉक्टर ने जो एडवाइस दी थी उसको मानना चाहती थी। It so happened that the sky remained overcast next morning. The same was the case the following day. Saida's mother was rejected. She muttered, "O Lord of mine, why have you ordered the sun to remain hidden? How will I ever be cured?" यहाँ पे क्या बताया है, कुछ ऐसी घटना घटी कि अगली सुबह क्या हुआ कि आसमान में जो है बादलों से ढका हुआ रहा। उसे अगले दिन भी वही हालात रहे। सईदा की माँ जो है बहुत ही निराश हो जाती है और वह बड़बड़ाती है कि हे मेरे भगवान, तुमने सूर्य को छुपे रहने का आदेश क्यों दे दिया? मैं कभी भी किसी प्रकार से कैसे ठीक हो सकूंगी? ठीक है, आगे देखिए। सईदा वाज प्लेइंग विद हर डॉल नियर बाय एंड शी हर्ड हर मदर्स लैमेंट बट केप्ट काम। लेटर इन द आफ्टरनून व्हेन शी टम्बल्ड ऑन अ स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन इन द कोर्टयार्ड शी ran to her mother's to say the sun was there. "No, no," said everybody present. "It's too late and chilly. Your mother can't sit out there." Disheartened, Saida's returned to her doll. There was no sun really except for its last remnant entangled in the top branches of the family mango tree. यानी कि सईदा जो है अपनी गुड़िया के साथ में खेल रही थी। ठीक है, थोड़ी दूर पर ही उसने अपनी माँ की जो रुलाहट भरी आवाज़ सुनी, लेमनेंट मतलब रुलाहट भरी आवाज़ सुनी, परंतु वह शांत रही। बाद में दोपहर के बाद जब उसने आंगन में पीले रंग की धूप वाला स्थान देखा तो कहने के लिए अपनी माँ के पास दौड़ती हुई गई कि माँ, सूर्य निकल आया है। तब वहाँ पर जो उपस्थित व्यक्ति थे उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, अब काफ़ी देर हो चुकी है, अब तो सर्दी है, तुम्हारी माँ वहाँ नहीं बैठ सकती है। अब वो उदास हो गई सईदा। ठीक, सईदा जो है निराश होकर के गुड़िया के पास चली गई। कहते कि देयर वाज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर इट्स लास्ट रेमिनेंट एंटेंगल ऑन इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री। यानी कि कोई धूप नहीं है सिवाय सूर्य की अंतिम किरणों के, जो आम के पेड़ की सबसे ऊंची शाखाओं में अटकी हुई थी। यानी कि थोड़ी बहुत आती हुई दिखाई दे रही थी आम के पेड़ से। ठीक है, सो आगे देखिए, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ चिल्ड्रंस हैव देयर कमांड अ सीक्रेट लैंग्वेज foreign to grown-ups altogether, in which they fluently communicate with trees, flowers, animals, the sun, and the moon. Perhaps even with the Almighty, using that special language. Saida's address her remark to the last departing ray of the sun. "Dearest sister, do come tomorrow with lots of warmth and brightness. You see, my mother is ill and needs your help." अब क्या हुआ कि जो बच्चे हैं ना, उनकी जो एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है उसके ऊपर उनकी कमांड होती है। वो लोग क्या कर सकते हैं कि जो अपनी सीक्रेट यानी कि गुप्त भाषा से, पौधों से, फूलों से, पशुओं से, सूर्य से, चंद्रमा से और यहाँ तक कि जो सर्वशक्तिमान यानी कि भगवान से भी वो बातचीत कर सकते हैं। इसी विशेष भाषा का प्रयोग करके सईदा ने भी सूर्य की विदाई लेती हुई जो आखिरी किरण थी उसको संबोधित करते हुए कहा कि प्रिय बहन, कल काफ़ी गर्मी और रोशनी के साथ उपस्थित होना। देखो, मेरी मम्मी बीमार है और उसे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। श्योरली आंसर द लाइट, डोंट लुक अनहैप्पी, वी विल बी हियर एट द फिक्स्ड आवर। निसंदेह रोशनी ने उत्तर दिया कि उदास दिखाई मत दो, हम ठीक समय पर आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि तुम उदास मत हो, हम सही समय पर यहाँ पर आ जाएंगे। नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द स्प्राइटली सनरेज एम्बेलिश देमसेल्व्स फॉर देयर जर्नी डाउन टू अर्थ, द सन सेड, "इट्स आवर डे ऑफ अगेन, वी आर स्टेइंग अप हियर, द रोड टू अर्थ is blocked by an army of thick murky clouds. The little rays so much wanted to go down for a lark, but they remained quiet. One of them, though, who had made a pact with little Saidas, said, "Sir, I can't stay back." यहाँ पे क्या बताया है कि अगले दिन क्या हुआ कि जब सुबह जब सूर्य की किरणों ने नीचे पृथ्वी पर आने के लिए स्वयं को सजाया, तो क्या हुआ कि सूर्य ने उन्हें कहा कि आज फिर हमारा अवकाश रहेगा, यानी कि हम छुट्टी पे रहेंगे, हम यहाँ ठहरे हुए हैं। पृथ्वी तक पहुँचने का मार्ग जो है किसने रोक रखा है? घने बादलों ने, उनकी सेना से घिरा हुआ है। ठीक है, छोटी छोटी किरणें आनंदपूर्ण यात्रा पर जाने के लिए इतनी ज़्यादा लालायित हैं, परंतु वे शांत रह जाती हैं। उनमें से एक ने मानो सईदा के साथ समझौता कर लिया था। कहा, श्रीमान जी, मैं पीछे नहीं ठहर सकती हूँ। ठीक है, क्यों नहीं ठहर सकती है? देखिए आगे,
I have given my words to Saidas, whose mother is ill and needs our help. I will pass through the clouds to reach Saida's courtyards. How else will her mother be cured? Hearing this, all the rays nearly staged a revolt against their father, the sun. Fancy staying back again. They said in a single voice, "What will the people of the earth say about us? That we of the heaven have turned liar." यानी कि यहाँ पे बताया कि मैंने सईदा को अपना वचन दिया है, जिसकी मम्मी बीमार है, जिसे हमारी सहायता की आवश्यकता है, और मैं सईदा के आंगन में पहुँचने के लिए बादलों को भी चीर दूंगी। उसकी मम्मी का इलाज किस प्रकार से होगा अगर हम नहीं जाएंगे तो। ये बात सुनकर के सभी किरणों ने अपने पिता सूर्य का विद्रोह कर दिया, और यदि हम यहाँ ठहरे रहेंगे तो संसार के लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे। उन्होंने एक ही स्वर में कहा कि स्वर्गवासी होते हुए भी हम झूठे निकले। आगे देखिए, द सन रिलेंटेड, प्लीज योर सेल्फ, ही सैड, माइंड योर क्लॉथ्स दो द क्लाउड्स आर मकी। सूर्य अब नर्म पड़ जाते हैं, ठीक है, खुश हो जाओ। उसने कहा कि हालांकि अपने कपड़ों का ख्याल रखना, बादल गंदे हैं, ठीक है। अब किरणें क्या कहती है कि नेवर माइंड अवर क्लोथ्स, वी कैन ऑलवेज चेंज, बट गो वी मस्ट। एंड द रेज रश्ड टुवर्ड्स द अर्थ, द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम एंड Saida's courtyard. The little rays focused their heat, and they had enough of it, on a battalion of clouds which had to flee from its post. The rays got through, shooting past the bewildered clouds. They were already late. हमारे कपड़ों की चिंता मत करो, उन्हें हम कभी भी बदल सकते हैं, परंतु हम अवश्य जाएंगे। तुरंत ही क्या होता है कि किरणें पृथ्वी की तरफ दौड़ने लगी। बादल उनकी और सईदा के जो आंगन के बीच पहरा दे रहे थे, छोटी किरणों के ने अपनी गर्मी संचित कर ली इकट्ठी करके, और बादलों की टुकड़ी के लिए वो पर्याप्त थी, ठीक है, जिन्हें अपने स्थान से उड़ना पड़ा। घबराए हुए जो बादल थे, उन बादलों के बीच में तीव्र गति से किरणें निकल गई। उन्होंने पहले ही काफ़ी देर कर दी थी, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी पहुँचने की कोशिश की। Saida saw the whole host of them approaching, and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma, the sun is here. Come out." The old lady's eyes welled up with tears of gratitude. Her charpai was placed in the courtyard, and she sat on it for an hour, reclining against bolster. It had been months since she had felt the sun on her hands and face and breathed in fresh air. She thought she was in a new world. Though pale, her face glowed and her eyes shone bright. She saw her child to bathe in sunlight and kissed her. The morning air brought in a few fragrance from nearby flowers. The birds chanted a new tune. Saida's mother felt better already. यानी कि अब देखिए क्या हुआ कि सईदा saw the whole host of them approaching, and her heart leapt with joy. She shouted, "Amma, Amma." यानी कि सईदा ने उन किरणों के पूरे ग्रुप को समीप आते हुए देखा। उसका हृदय जो है खुशी से उछल पड़ा, और वे चिल्लाने लगी, "अम्मा, अम्मा, सूर्य निकल आया है, बाहर आ जाओ।" बूढ़ी महिला की आंखों में जो है कृतज्ञता के आंसू छलकने लगे। आंगन में उसकी चारपाई डाल दी गई, और वो 1 घंटे तक बड़े तकिए का सहारा लेकर चारपाई के ऊपर बैठी रही। It had been months since she had felt the sun of her hands and face and breathed in fresh air. She thought she was in a new world. यानी कई महीनों से उसने न तो अपने हाथों और चेहरों को धूप में सेका था और न ही ताज़ा हवा में सांस ली थी। उसने सोचा कि वह नए संसार में पहुंच गई है। पीला होते हुए उसका चेहरा चमक उठा। उसने अपनी बच्ची को भी धूप में बिठा लिया। द मॉर्निंग एयर ब्रॉट इन अ न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाय फ्लावर्स। द बर्ड्स चांटेड अ न्यू ट्यून। सईदा's मदर फेल्ट बेटर ऑलरेडी। सुबह सुबह जो है प्रातःकाल की जो हवा है वो नज़दीक वाले फूलों से नई सुगंध लाई। पक्षियों ने कई नई धुन गाई, और सईदा की मम्मी ने पहले से कुछ बेहतर महसूस किया, ठीक है। शी इज़ फुली रिकवर्ड नाउ, बट शी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस। एन आवर ऑफ सनलाइट्स एंड लंगफुल्स ऑफ फ्रेश एयर एवरी डे। यानी कि अब पूर्ण रूप से ठीक हो गई है, परंतु अभी भी डॉक्टर की सलाह को मानती है। प्रतिदिन 1 घंटे धूप का सेवन और ताज़ा हवा से फेफड़ों को भरना, ये सारा काम करती है, जिससे वो जल्दी ही रिकवर हो जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।